Very good afternoon to everyone, and thank you for joining us for another special knowledge session organized by Knowledge and Awareness Mapping Platform. I, Arika Mathur, convener of CAMP, will moderate this session today. Today we have with us Ms. Prerna Dua, psychologist, life skill trainer, and principal, GD Goenka, Lucknow. I welcome you, Ms. Dua. Today we have with us Mr. Ashish Mittal, member of CAMP Planning and Monitoring Committee and Project Director, CAMP. I welcome you, sir, and I bid you all a very warm welcome. We are indeed very honored to have you here with us. Knowledge and Awareness Mapping Platform is an initiative and knowledge alliance of CSIR, NISPER, that is National Institute of Science, Communication and Policy Research, which was launched in the year 2019 by Professor K. Vijay Raghavan, the Chief Scientific Advisor to Government of India, and Dr. Peter C. Monday, DG CSIR. The main objective of CAMP is to map the science process skills and scientific attitudes of young students based on their assessment and nurture them as future scientists of the country. It believes every student is blessed with a core talent and aims to bring out the best in them through this platform. It aims to inculcate critical thinking ability and fill in the gap that will be identified through the knowledge assessment level. CAMP was also able to identify and recognize 20 national toppers, 286 state toppers, and 1005 district toppers from different parts of India in year 2019 and 2020. CAMP is proud to be hosting this second fortnightly sessions of the year 2022 and announces the beginning of this registrations of CAMP NASTA 2022 online through our website www.camp.res.in. So without further delay, I now invite Ms. Prerna Dua, psychologist and principal of GD Goenka, Lucknow. She is a behavioral psychologist, certified trainer, life coach, and an NLP master practitioner. She's the founder of Heal and Rise Wellness Company. Her motivational talks release stress and instill zeal, new dreams, and focused goals. She has been awarded with Global Leadership Award by Indian Leadership Academy, Ramanujan College, Delhi University. I request Ms. Prerna, ma'am, to please address the academy. Over to you, ma'am. Hello. Good evening, students. Good evening, everyone. Can you all hear me? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Students भी बीच में अपना mic mute करके questions पूछ सकते हैं? Ma'am, right now their mic are mute, but after the entire session, let's have a question and answers round. I'll give them the opportunity. Sure. Okay, everyone. तो आई एम श्योर आप अलग अलग सिटी से कनेक्ट हुए हो, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हो. हम में से कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे और कुछ लोगों को आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. राइट. आपको इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है. राइट. मैं जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं एक बार दोबारा उनको बता देती हूँ दैट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है दैट मैं आपके बिहेवियर्स को देख के आपको आगे क्या करना है, आई कैन मोटिवेट यू. ठीक है. तो आज का टॉपिक क्या है? सोशल इमोशनल लर्निंग. राइट. सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होता है? एनी आइडिया? ओके. हमको ये पता है कि हम स्कूल जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, हम टीचर्स से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं. राइट. जब हम कोई भी फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं, मतलब हमें एज एन इंडिविजुअल सोशली एक्टिव होना होता है. हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बिना किसी से बात किए रह लें. करेक्ट. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. हम सबको एक दूसरे से मिलजुल के रहना होता है. और घर पे भी अगर आपके सिबलिंग्स हैं, किसी के साथ आपकी फाइट हो जाती है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना कि नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से प्यार से रहना चाहिए है. करेक्ट. तो ये क्या है, हम सबको हमारे पेरेंट्स और हमारी टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं कि सबके साथ सोशल होके रहना है, सबके साथ अच्छे से रहना है. ठीक है. दूसरा जो इसमें हेडिंग में जो दूसरा टॉपिक है वो है इमोशंस. ठीक है.
आप सबने सुना होगा कि हमारी एक होती है हमारी इंटेलिजेंस होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं IQ, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और हम कहते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि हमारा एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है जिसको हम EQ बोलते हैं, पता है आपको, जिसको हम EQ बोलते हैं। EQ का मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस में कितने अच्छे हैं, ठीक है, हम कितने अच्छे से अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं। आपको ये पता है कि आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, या आपके पेरेंट्स का बिजनेस होगा या शॉप होगी, है ना, आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स या आप, कोई भी गुस्सा करता है ज्यादा, राइट, तो उसका मतलब क्या है कि उसको अपने स्कूल में भी, सॉरी, अपने ऑफिस में भी उनको प्रॉब्लम आती होगी, करेक्ट, अगर वो किसी को गुस्सा तो नहीं कर सकते, राइट। तो अपने इमोशंस को हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, सोशल होना भी इम्पोर्टेंट है और अपने इमोशंस को हैंडल करना भी इम्पोर्टेंट है। और जब हम इन ये दोनों चीजें सीखते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग। अब आप स्कूल जाते हो, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, करेक्ट, आपको आपके एकेडमिक्स पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, करेक्ट। लेकिन आप जब सोशल इमोशनल लर्निंग करते हो तो आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग होती है, ठीक है, ओवरऑल ग्रूमिंग होती है, जिसके अंदर कैंप, जो जिसके थ्रू आप मेरे से जुड़े हो, ये प्लेटफॉर्म जो है उसमें आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, वीकली सेशंस अरेंज करा के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, राइट। सो आज का जो सेशन है उसमें हम आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, देखिए, आपको ये पता है कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास हमारे क्या क्या इमोशंस होते हैं, ठीक है, हमारे क्या क्या इमोशंस होते हैं। नंबर 1, हैप्पीनेस। हम सबको पता है हैप्पीनेस क्या होती है, हम हैप्पी रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें पता है सैडनेस क्या होती है, हम कभी कभी सैड हो जाते हैं, करेक्ट, हैप्पी सैड हमको पता है। थर्ड थिंग क्या होती है, एंगर, राइट, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हमें नहीं आता तो हमने किसी ना किसी को गुस्सा करते हुए देखा होगा, करेक्ट, यस और नो, ठीक है। हैप्पी, सैड, एंगर, ये तीनों हमें इमोशंस पता है। व्हाट इज द फोर्थ इमोशन? जब हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम एकदम ऐसे प्राउड फील करते हैं ना, तो प्राउड फील करना भी एक इमोशन है, Good morning, यस ma'am. और नो? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। प्राउड फील करना भी एक इमोशन है, राइट। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि प्राउड फील करने के अलावा और क्या होता है, जैसे हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, हम बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें गिल्टी फील होगा। हाउ डू वी फील? वी विल फील गिल्टी, यस और नो, है ना, गिल्टी भी हमें फील होगा। अच्छा, और क्या इमोशन हो सकता है? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हमें फील होगा एकदम से, बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगेगा हम आज बहुत बहुत सारा खेलें, यस और नो। और क्या होता है, एक्साइटमेंट हमें फील होती है, अगर हमारे को पता है हमें कल पिकनिक पे जाना है, ठीक है, या हमें पता है कल हमारा डांस परफॉर्मेंस है, तो हम एक्साइटेड फील करते हैं, यस और नो, करते हैं ना एक्साइटेड फील, राइट। मुझे वेद का थंब दिख रहा है पिकनिक के नाम पे, वेरी एक्साइटेड। और मुझे सृष्टि का भी थंब दिख रहा है, श्लोक का भी दिख रहा है, यस। तो सबको एक्साइटेड फील होता है, अथर्व, एवरीवन, दिव्यांश, कृष्णा, देवांश, ठीक है। सो यशराज, वैष्णवी, सृष्टि, अमन, सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन करके बैठेंगे ताकि मैं सबको देख सकूं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक्साइटेड भी फील होता है, करेक्ट। अब कई बार हमें ऐसे फील होता है कि हमें डिमोटिवेट भी फील हो जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि ये एग्जाम आ गए, हम क्या होंगे, हम टेंशन लेने लग जाएंगे, अगर हम नहीं ले रहे तो हमारे पेरेंट्स टेंशन लेने लग जाएंगे, यस और नो, हमें बोलेंगे पढ़ लो, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, हम टेंशन नहीं लेते तो क्या होता है, पेरेंट्स टेंशन देने लग जाते हैं,
है ना, ऐसा होता है ना, तो हम भी टेंशन लेने लग जाते हैं, राइट। तो अब क्या है कि इमोशंस को फील करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इमोशंस में कुछ भी अगर हम सोचें कि यार कई बच्चे हैं जिनको रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, होता है ना ऐसा कि कोई बात हो गई एकदम से रोने लग गए, या कोई टॉय चाहिए है तो बस बहुत ज्यादा जिद करने लग गए, जिस वजह से हमें डांट भी पड़ती है अपने पेरेंट्स से। यस और नो, होता है ना ऐसा, ठीक है। रिचा हंस रहे, रिचा देख रही है मम्मी की तरफ कि मैं तो ऐसा करती हूँ, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिद करने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो इमोशंस को फील करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस में ना 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, ठीक है। ओन इमोशंस कैसे होगा, जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लग रही है वो तो भी रोता है ना, उसको उसको टॉयलेट जाना है वो तो भी रोता है ना, वो हर बात पे रोता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता उसको क्या हो रहा है ना। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है ना हमें क्या चाहिए, हम अपने मुंह से बोलते हैं, हमारे को अपने इमोशन समझ आने लग जाते हैं, यस और नो। फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमारे को और इमोशन समझ आते हैं, हमें पता लग जाता है कि यार नहीं अब ना मेरे को डांट पड़ी है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को बोल डांटते रहते हैं, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है आपने देखे हैं, उनको उनके मम्मा पापा डांट देते हैं वो तो भी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं लगता उनको डांट पड़ी है अब कि नहीं, है ना। लेकिन आपको तो फर्क पड़ता है ना कि डांट पड़ी है तो आप सीरियस हो जाते हो, है ना। तो इमोशंस अच्छी बात होती है, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, उसको रेगुलेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम हुआ, आपने सोचा था कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ठीक है, लेकिन उसमें ना अच्छे मार्क्स आ नहीं पाए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपने मार्क्स को, एक होता है कि सैड होके बैठ जाना, मेरे मार्क्स तो बहुत बेकार आए हैं, मैं तो दोबारा मेहनत नहीं करूंगा। और एक होता है कि हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, वी फाइट बैक, हम क्या करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करो सारे, बाउंस बैक, ऐसे करो, बाउंस बैक, ठीक है, ऐसे बाउंस बैक एकदम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे 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 एकदम सैड होके बैठे रहना, ऐसे नहीं करना। चाहे मम्मी ने खेलने के लिए मना किया है, चाहे उन्होंने साइकिलिंग करने के लिए मना की, कुछ भी किया, हमें क्या करना चाहिए है, अपने टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए है, टाइम को मैनेज करना। एक बात बताओ, अगर आप अपने होमवर्क को, आपको पता है कि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक मम्मा खेलने नहीं जाने देंगी, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क फटाफट क्यों नहीं करते, है ना। अगर आप फटाफट होमवर्क कर दोगे, फटाफट सारे काम कर दोगे, तो आप खेलने जा सकते हो, यस और नो, टेल मी, यस और नो, जा सकते हो ना, ऐसे करो, जा सकते हो ना, है ना, ठीक है। तो अगर हम अपना होमवर्क टाइम पे करें तो किसको फायदा मिलेगा, हमको खुद को फायदा मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। हमें 2 आवर्स का काम 1 आवर में करना होगा। सबको खेलना पसंद है, यस और नो, खेलना सबको पसंद है ना, है ना, खेलना सबको पसंद है। तो हम सबको क्या करना होगा, फाइट बैक करना होगा, ठीक है। हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा, राइट, ओके। अब आपको ये पता है, मैंने आपको बोला सोशल रहना है, मैंने आपको इमोशंस भी आपको पता लग गया कि इमोशंस ये होते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपको कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, यस और नो। कम्युनिकेट करना, अगर आपको बुरा फील हो रहा है लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो तो गलत कम्युनिकेशन हो गया ना। अगर मम्मा ने बोला फटाफट अंदर आ जाओ पढ़ने का टाइम, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को और खेलना है, मैं नहीं आ रहा, तो फिर तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। फिर क्या होगा, फिर तो डांट पड़ेगी, ऐसे करके बात करोगे तो। लेकिन अगर आप बोलोगे मम्मा मेरे को थोड़ी देर और खेलना है, मैं उसके बाद पढ़ने के लिए आऊंगा, ठीक है, बस थोड़ी देर में, बस मैं 15 मिनट्स और खेल के फिर मैं आ जाऊंगा। तो इस तरीके से अगर हम कम्युनिकेट करें तो अच्छा लगेगा ना सबको, हमारी फैमिली में कोई हमें डांटेगा नहीं कि ऐसे गुस्से से बात करते हो, आपको बात करनी नहीं आती बड़ों से, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा ना, यस और नो, राइट। अगर आप अपनी बात को गुस्से के बजाय अच्छे से प्यार से कम्युनिकेट करो, ठीक है, तो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी,
यस और नो? यस और नो? हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमें खेलने नहीं दिया जाता, वो तो सॉल्व हो जाएगी कम से कम। यस और नो? है ना? तो उससे पढ़ाई भी हो जाएगी और हम खेल भी लेंगे। ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अब जैसे हम सबके घरों में कुछ कुछ आप काम करते होगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टी बनानी आती होगी, चाय बनानी आती होगी, या आपको कहते होंगे प्लांट्स में वाटर डालो। कुछ कहते हैं अब आपकी समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं, तो अब आप घर पे बैठोगे तो आपको फैमिली में क्या बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा काम करो। आप करते हो कुछ काम अपने घर पे? करते हो? कौन कौन करते हैं? जो जो कुछ भी एक काम भी करता है वो अपना हैंड रेज करेगा। एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, जिसे पानी भरना है तो आप भरोगे। ठीक है? राइट? कौन काम करता है? सारे काम करते हैं एक एक काम। वेरी गुड, सबने हैंड रेज किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। राइट? सबने हैंड रेज करा है, और सब अपना कैमरा भी ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ सारे बच्चे ही हैं, सारे अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है? एवरीबडी कैन टर्न ऑन देयर कैमरास। ठीक है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, काम करना है, अब ये पता है कि आपको काम करना है, एक हो कि आपके पेरेंट्स आपको बोले कि करो काम, जाके करो करो करो, और आप एकदम से ऐसे बोलो नहीं अभी अभी मैं कर लूंगा ना, अभी कर लूंगा ना, अभी नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हम रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है ना। हमें पता है हमने काम करना है। राइट? तो हम खुद, अब हमारी मम्मा है, मम्मा को हमें कहना तो नहीं पड़ता ना मम्मा को खाना बनाना है। मम्मा रोज खाना बनाती है ना, आपसे पूछती तो नहीं है। आपको बार बार मम्मा को कहना तो नहीं पड़ता ना मम्मा खाना बनाओ, मम्मा खाना बनाओ। और मम्मा कहे बना दूंगी ना, ऐसे करती है मम्मा? नहीं करती ना। किसी की मम्मा भी नहीं। नाउ अ डेज डैड कैन ऑल्सो मेक फूड। मम्मा पापा कोई भी हो, आप उनको बोलो तो वो क्या बोलेंगे फटाफट कि ठीक है बेटे मैं अभी लेकर आता हूँ, या अभी लेकर आती हूँ। यस और नो? राइट? यस और नो? है ना? तो जब मम्मा पापा आपको इतना प्यार करते हैं, ठीक है, आपको स्कूल भी भेजते हैं, आपको पता है एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है चाहे नहीं अच्छा लगता, पर आपको ये पता है ना कि स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? है ना? वो आपको स्कूल भेजते हैं, आपको अगर एक छोटा सा काम बोला है और उसमें भी अगर हम इरिटेट हो जाए कि हमें ये छोटा सा काम भी क्यों बोल दिया, तो वी आर रॉन्ग। यस और नो? है ना? तो अगर हमें पता है कि ये काम हमने करना है, ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंग खुद ही अपने टाइम को मैनेज कर लिया करें। यस और नो? तो उससे क्या होगा, आवर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स। यस और नो? पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। करेक्ट? प्राउड फील करेंगे ना। एंड हम अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी चीजों से अगर प्राउड फील करवाएं तो हमें खुद को कितना अच्छा लगेगा। है ना? ठीक है? तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? इमोशंस। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात किया। क्या बात किया हमने? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। और हमने क्या बात करी? बाउंस बैक के बारे में। यस और नो? बाउंस बैक के बारे में। और हमने क्या बात करी? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है? ठीक है। तो अब हम सोशल इमोशनल लर्निंग अगर हमें करनी है तो हमें छोटी छोटी चीजों से करनी पड़ेंगी। इमोशंस तो हमारे को भी नहीं पता लगते कब हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों अगर हम उसको रेगुलेट करेंगे तो बड़ी चीजों में ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलेगी। यस और नो? अगर हम छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज फुलफिल करेंगे तो कल को हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर सकते हैं, जैसे अपने करियर में अच्छा करके, अपने करियर में सक्सेसफुल होके। यस और नो? अगर हम अभी छोटी छोटी चीजों में लेजी होंगे तो हम बड़ी बड़े काम कैसे करेंगे अगर हम लेजी रहेंगे तो? यस और नो? यस और नो? ठीक है? ओके। सो मुझे एक बात बताओ कि अब आप सारे बच्चे स्कूल जा रहे हो वापस से, ठीक है, इतने साल 2 इयर्स तक आपके स्कूल्स बंद थे,
करेक्ट? इतने साल तक आपके स्कूल्स बंद थे, अब आप स्कूल जा रहे हो, किस किस को स्कूल में वापस आके मजा आ रहा है? रेज योर हैंड। किस किस को स्कूल में वापस आके मजा आ रहा है? एवरीबडी? एवरीबडी इज रेजिंग देयर हैंड्स? गुड। कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि यार स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो अकेले ही खुश था, अब ना पूरा टाइम फोन चलाता था, मजे करता था, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, मुझे तो घर पे ही रहना है? ऐसा कोई है? वो अपना हैंड रेज करेगा। अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है तो ऐसे कर दो, अगर ऐसा कोई है तो वो ऐसा कर दो। जिस बच्चे को ऐसे लग रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे को सिर्फ घर पे रहना है, वो अपना हैंड रेज करो। और जिस बच्चे को लग रहा है कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, वो ऐसे करेगा। सारे बच्चे स्कूल जाके खुश हैं, सारे के सारे, सारे के सारे स्कूल जाके खुश हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, अगर आपके कोई फ्रेंड हो या आपके कोई छोटे बहन भाई हो जो रोज जिद करें नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, ठीक है, तो उनको क्या सिखाना है आपने? बाउंस बैक। ठीक है, कि घर पे नहीं रहना, एकदम से अपने ऐसे एनर्जी लेकर आकर और हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, क्या करना है? हम स्कूल जाएंगे, ऐसे करो एक बारी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको एक बात बताओ, जब आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट होता है या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता है जब, तो वहां पे जब आप कोई गेम खेलते हो तो आपका मन करता है लीडर लीडर बनने का, कि मैं कैप्टन बनूं अपनी टीम का, या मैं लीडर बनूं, या कोई भी गेम हो स्पोर्ट्स हो तो उसमें मैं एकदम अच्छा करूं? किस किस का मन करता है कि सारे मेरी बात सुने, मैं लीडर बनता हूं, मैं डिसाइड करूंगा कौन क्या करेगा? सबका मन करता है? सबका मन करता है? वाओ, ओके। मैं एक बार चेक करती हूँ, सबने, तो सबने हैंड रेज किए हुए हैं। जिस जिसने नहीं किया वो भी हैंड रेज करो एंड टर्न ऑन योर कैमरास। ओके, वंडरफुल। अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। आपको ये पता है कि जब स्कूल आपको पता है हार्वर्ड का नाम सुना आपने? हार्वर्ड, हार्वर्ड का नाम सुना है? जिस जिसने सुना है वो हैंड रेज करो। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, किसी ने सुना है नाम? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बताती हूँ, हार्वर्ड क्या है कि जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना, ठीक है, तो हार्वर्ड ना वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज है, जिसको हम बोलते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ठीक है, उसके अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड स्कूल ने ना, हार्वर्ड कॉलेज ने ना एक रिसर्च करी, ठीक है, एक स्टडी करी। उस स्टडी में ना ये देखा उन्होंने कि जब आपको पता है कि कंपनीज जो होती हैं, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं लोग, है ना, तो वहां पर भी लीडरशिप होती है, बच्चों सबको लीडर बनना होता है। और आपको पता है वहां पर ना ट्रेनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे आपको पता है मैं ट्रेनर हूँ, मैं क्या करती हूँ, जिस कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज को और कुछ सीखने की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल्स सीखने की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है, हार्ड स्किल्स क्या हुए? आपकी एजुकेशन जो आप सीख रहे हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, ये सब क्या है? हार्ड स्किल्स। ये सब आपकी पढ़ाई है, ये सब आपके काम आएगी। ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स। क्या होता है दूसरा? सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। क्या होता है? अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो उन्होंने ये रिसर्च करी कि जो बच्चे बचपन में ही लीडरशिप सीख जाते हैं, उनको बड़े होकर उतनी अच्छी से समझ नहीं आता
क्योंकि बड़े में तो आपकी पर्सनालिटी बन गई, फिर वो चेंज थोड़ी होती है। आपको लगता है आपके पापा कभी चेंज हो सकते हैं, आपकी मम्मा कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकता ना। लेकिन आप ग्रो हो रहे हो तो आप चेंज हो सकते हो। तो जब ये हार्वर्ड बिजनेस ने जब स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि बच्चों को अगर हम अच्छे से ट्रेन करें तो हमारे को ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू हम लीडरशिप रोल पे उनको ट्रेन करें। ठीक है? ठीक है, समझ आ गया सबको मैंने क्या बताई रिसर्च? सबको समझ आया? तो इसका मतलब हमारे लिए ये सब चीजें सीखना एट प्रेजेंट कितना इंपॉर्टेंट है? यस और नो? हम सबके लिए ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? ठीक है। अब इस सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? सॉफ्ट स्किल्स में आता है आपके लीडरशिप स्किल्स। आप सबने बोला हम लीडर बनना चाहते हैं, सबने बोला था ना लीडर बनना चाहते हैं। अब हम देखते हैं लीडर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, देखो आप सारे यहाँ पर अटेंड कर रहे हो सेशन, आपके फ्रेंड्स नहीं कर रहे, आप और बाकी बच्चे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप यहाँ से जो जो सीख के जाओगे वो आप एकदम आपके पास मैजिक आ जाएगा और आप उसको अच्छे से सीख के जाओगे, है ना? ठीक है, उसको अपने स्कूल में जाके इम्प्लीमेंट करना फिर। ठीक है, अच्छा, हम पता है क्या सोचते हैं? लीडर का मतलब है कि हम जिसको जो बोलेंगे वो करेगा। आपको पता है कि क्रिकेट कौन कौन देखता है? क्रिकेट किस किस को पसंद है? हम सबको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन पहले धोनी थे, MS धोनी। यस। उसके बाद कौन हुए? विराट कोहली। पता है हम सबको? एट प्रेजेंट कौन है? रोहित शर्मा। यस और नो? ठीक है, आपको पता है कि जब MS धोनी जब कैप्टन थे तो विराट कोहली उनकी बात मानते थे? पता है आपको ये बात? क्योंकि वो कैप्टन नहीं थे। जब वो कैप्टन बने तो रोहित शर्मा भी उनकी बात मानते थे। यस और नो? ठीक है, अब वो भी बात मानते थे, लेकिन अब जब विराट कोहली तो अभी भी टीम में है लेकिन वो एक्स कैप्टन है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट कौन है? रोहित शर्मा। तो विराट कोहली को रोहित शर्मा की भी बात माननी होगी। यस और नो? रिड्रेस। तो आपको सबसे पहले लीडर बनने के लिए पहले लीडर की सुननी पड़ेगी। जो लीडर है अगर उसको मैम ने बनाया है या किसी ने भी वोटिंग करके बनाया है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को मतलब उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा उनको, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें सीखना है। वी नीड टू ऑब्जर्व देम। यस और नो? यस और नो? वी नीड टू ऑब्जर्व देम, राइट? ओके, उसके अलावा हमें उनकी बात माननी है। यस और नो? वी नीड टू ओबे देम। यस और नो? वी नीड टू ओबे देम। ठीक है, उसके बाद आती है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, हम सबने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमको पता है वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो इन्वेंशंस करते थे। यस और नो? क्या करते थे वो? क्या करते थे? इन्वेंशंस करते थे। सबको पता है? सबको पता है इन्वेंशंस करते थे वो? ओके, कोई है जिसको नहीं पता उनके बारे में? ओके, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आइंस्टाइन ना जब उनकी लैब थी, ठीक है, वो बहुत सारे इन्वेंशंस करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उनके पास ना एक वो आए, एक लड़का आया उनके पास। वो ना बहुत दूर दूर से आया था, उसके पास ना सिर्फ ट्रेन में एक साइड पे जाने के पैसे थे कि वो वन वे ट्रेन पे सिर्फ जा सके। जब वो आइंस्टाइन के पास आया, वो कहता है आइंस्टाइन को, मैं ना आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं ना आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आइंस्टाइन को ऐसे हुआ कि यार इसकी ये तो छोटा सा लड़का है, इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसको हम कैसे, अब ये मेरा बिजनेस पार्टनर कैसे बनेगा? तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, PN की जॉब करो।
पीएन कौन होते हैं? जो थोड़ा सामान वगैरह उठा देते हैं, इधर से उधर रख देते हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम करते हैं, यस और नो? ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बोले कि आप ना इस काम को ना अच्छे से सीखो, हमें कोई ऐसा बोले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं सीखेंगे, हम क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ ना नया नहीं करेंगे, हम तो वही जो हम सीख करते आए हैं हम वही करेंगे, ये करने की क्या जरूरत है। अब ये देखो कि इस लड़के का ड्रीम कितना बड़ा था, ये आइंस्टाइन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था, आज तक भी लोग उसको याद रखते हैं। तो क्या हुआ, आइंस्टाइन ने बोला ठीक है आप पीएन की जॉब कर लो, तो ये भी पीएन की जॉब करने लग गया। अब इसने वेट किया, ये सारा काम सीखता रहा, इसने वेट किया 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद ना एक ऐसा इन्वेंशन किया आइंस्टाइन ने जो कोई खरीद नहीं रहा था। अब एक बात बताओ कि कोई खरीदेगा नहीं तो आइंस्टाइन का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप कोई चीज बनाओ और वो कोई खरीदे ना, तो आइंस्टाइन की इन्वेंशन का क्या कोई फायदा हुआ? यस और नो? अगर नहीं हुआ तो ऐसे बोलो नो, नहीं हुआ फायदा, ठीक है। अब आइंस्टाइन तो दिक्कत में आ गए, परेशानी में आ गए कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सामान ही नहीं बिक रहा। उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो उनका सामान जाके बेचते थे, तो उन्होंने ना क्या किया था, 2000 प्रोडक्ट्स बनाए थे उन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो 2 प्रोडक्ट्स भी नहीं बेच पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? 2 प्रोडक्ट्स भी नहीं बेच पा रहा था। तो आया तो ना इसने देखा ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये फटाफट गया आइंस्टाइन के पास, इसने बोला मैं बेच के दिखाऊंगा। क्या बोला इसने? मैं बेच के दिखाऊंगा। आइंस्टाइन तो वैसे ही परेशान था, आइंस्टाइन ने बोला कि कोई भी नहीं बेच पा रहा, ठीक है तू बेच के देख ले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये बेचने के लिए जब गया, इसने 20 प्रोडक्ट्स बेच दिए। आइंस्टाइन शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो गया, ठीक है। फिर उसने 20 के उसने 200 भी बेच दिए, फिर उसने 2000 भी बेच दी, फिर उसने 20,000 भी बेच दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी विल स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है, अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है, आपकी विल स्ट्रांग है, तो आप उसको अचीव कर सकते हो, यस और नो? टेल मी, आप उसको अचीव कर सकते हो? डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस विद हैप्पी फेसेस। हैप्पी होके करना है ये, ऐसे घूम नहीं हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे किसको पता लगेगा, ऐसे करो, यस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपकी विल स्ट्रांग होगी तो उस वो आइंस्टाइन का बिजनेस पार्टनर बन गया एंड ही वाज द रिचेस्ट पर्सन, लाइक आइंस्टाइन। वो इतने पैसे कमाता था जस्ट बिकॉज उसकी विल स्ट्रांग थी और उसने बेच के दिखाया। वो करना चाहता था, वरना एक्सपीरियंस वाले लोग भी नहीं कर पाए, यस और नो? ठीक है। तो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयर होना। अब हमें ये पता, उसको पता था कि मैं बेच सकता हूँ, उसको अपनी सेलिंग स्किल्स पता थी, मार्केटिंग स्किल्स पता थी। अब हम सबके अंदर कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई टैलेंट है हम सबके अंदर। किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, राइट? तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, यस और नो? ठीक है। तो हमें अपना स्किल पहचानना है, ठीक है, और उसके ऊपर वर्क करना है, और उसी से हमें उसको कंटिन्यू करना है, करेक्ट? क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब इमोशंस में क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि मम्मा पापा ने कुछ डांटा हमें और हमारे को ना बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने हमें किसी के सामने डांट दिया। ऐसा होता है हमारे साथ? जिन जिन के साथ होता है वो बताओ, जिनको नहीं फर्क पड़ता वो अपना हैंड नीचे ही रखेंगे। जिन जिनको लगता है कि यार किसी के सामने डांट दिया, या हम ट्रिप पे गए थे, हम बहुत खुश थे, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी हमने हमारे को डांट दिया, ऐसा होता है किसी के साथ? ओके। अब हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसे रुस के बैठ जाते हैं, हम बात ही नहीं करेंगे, हम ऐसे एकदम ऐसे होके बैठ जाएंगे कि नहीं हम ना अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, है ना? इज इट अ राइट वे टू डू? लेट अस सी व्हाट इज द राइट वे टू डू, ठीक है। अगर हम उनको अपने इमोशंस बताएं प्यार से कि आपने मुझे जो उस दिन डांटा था, ठीक है, नहीं, आई रोकर और फिर नॉर्मल हो जाना। सी एक होता है, आई टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज। एक होता है
टाइम विल हील इट। आपको कोई बात बुरी लगी, लेकिन अब आप एक बात बताओ, कोई बात 5 मंथ्स पहले हुई थी, उस टाइम आपको बुरी लगी, लेकिन आज आपको याद भी नहीं है। होता है ऐसा? टाइम निकल गया तो आप भूल जाते हो। यस और नो? हमें ये नहीं याद रहता, हमें क्या याद रहता है? 2 डेज पहले कुछ हुआ हो या 3 डेज पहले कुछ हुआ हो, तो वो चीज हमें याद रहती है। यस और नो? ठीक है। तो कोई चीज बहुत पहले हुई है वो तो हम भूल जाएंगे, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज दैट वेट फॉर द टाइम टू हील इट। लेकिन तब तक हम गुस्से में रहेंगे, नाराज रहेंगे, और हमें ऐसा लगेगा हमारे पेरेंट्स ना हमें प्यार नहीं करते, है ना? हमें ऐसा लगेगा हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते। दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम उनको प्यार से जाके बताएं। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स भी सॉरी हैं, बट हर किसी को तो सॉरी बोलना आता नहीं। तो हमें फर्स्ट सेकंड चीज क्या सोचनी है, दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट परफेक्ट, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अगर हम गलती करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेरेंट्स कभी गलती नहीं कर सकते। यस और नो? पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, राइट? तो वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। सो हमें ये सोचना है आवर पेरेंट्स आर नॉट परफेक्ट, उनसे गलती हो गई तो उनको हमने माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। ठीक है। और अपने जो दर्द है उसको, जो बहुत 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 बुरा लगा हुआ है, उसको हमने क्या करना है? खुशी में बदल देना है। ठीक है। तो क्या करना है? जो बच्चे ऐसा करेंगे वो बोलेंगे माफ कर दिया। ऐसे करके बोलो, माफ कर दिया। ऐसे करो, माफ कर दिया। ऐसे करो, सारे ऐसे करो बच्चे। वेरी गुड। वेद ने किया, स्मृति ने किया, ठीक है, शौर्य ने किया, सबने किया, वैष्णवी ने किया। सो क्या किया? इशनिति ने किया, हमने माफ कर दिया। ठीक है। वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है। परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है। थर्ड स्टेप हम क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया हम अपने लेवल पे। ठीक है। एक हमने वेट किया, लेकिन वेट करने में हम उतने दिन तो सैड रहेंगे ना, 3 डेज 4 डेज। लेकिन अगर हम माफ कर देंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे 1 डे के अंदर अंदर हम ठीक, नॉर्मल। ठीक है। ओके। ये श्रद्धा, मेरे को ऐसा लग रहा है स्पेस में बैठा हुआ है। श्रद्धा, टर्न ऑन योर कैमरा। श्रद्धा खरवाड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माफ कर दिया। थर्ड चीज हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स को जाके बोल सकते हैं कि उस दिन ना मुझे बुरा लगा था। अगर आपकी गलती आपको रियलाइज हो गई है, ठीक है, तो पहले तो अपनी गलती रियलाइज करनी है। उनको ये बोलना है कि मेरे को पता है मेरी गलती थी, मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? उसको रिपीट नहीं करूंगा। बट आप मेरे को प्यार से बोलते ना तो मुझे और अच्छे से समझ आता। बोल सकते हैं हम। ठीक है। और अगर तब भी पेरेंट्स बोले कि हम देखो 4 बारी तो प्यार से बोलते हैं, देखो समझ नहीं आता तो हमें गुस्सा करना पड़ता है, ऐसे भी बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है। तो इसका मतलब हमें खुद को, जब वो प्यार से समझा रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना है। हम खुद ही ऐसे हो गए हैं कि हम गुस्से से ही समझ आता है हमें, है ना? ऐसा हो गया ना कि हमें गुस्से से ही समझ आता है। जब तक कोई हमें गुस्सा नहीं करता तब तक हमें समझ नहीं आता। अगर वो प्यार से हमें आके बताएं और हम उसको फॉलो करें, तो पेरेंट्स हमें गुस्सा करेंगे? टेल मी, यस और नो? करेंगे? नहीं करेंगे ना? ऐसे बोलो, नहीं करेंगे ना हमें गुस्सा? तो हमें खुद को भी सुधारना है। ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स से गलती होगी उनको माफ कर दिया और खुद हम सोचे अरे हम तो ठीक है, हमने तो जो किया ठीक किया। अरे उनसे ऐसे नहीं करना। अपनी गलती को रियलाइज करके खुद को इम्प्रूव भी करना है। लेकिन उनको, उन्होंने अगर गुस्से से बोल दिया तो गुस्से के लिए उनको माफ करना है, लेकिन जो उन्होंने आपको करेक्ट किया उसको फॉलो भी करना है। यस और नो? हम सबने महाभारत देखी है। महाभारत देखी है हम सबने टीवी पे। यस, देखिए महाभारत, है ना? हम सबको पता है उसमें कृष्ण जी होते हैं, है ना? जब युद्ध होता है, ठीक है, तो कृष्ण जी कोई भी कुछ अस्त्र नहीं उठाते हैं, है ना? कोई तीर नहीं उठाते हैं, किसी को मारते नहीं है। वो सिर्फ अर्जुन को सिखाते हैं। और हम सबको पता है भगवत गीता होती है, गीता होती है, हम सबको पता है। गीता में हम कृष्ण जी ने जो जो बोला वो सब लिखा हुआ है, जो जो उन्होंने युद्ध के मैदान में बोला वो सब लिखा है। आपको ये पता है कि अर्जुन जो इतना बड़ा, आपको हम सबको पता है ना, वो
धनुधर था, बहुत अच्छा धनुष चलाते थे वो, हम सबको पता है ना ये बात, ठीक है। तो इतना अच्छा धनुष चलाते थे, तो ना अब आप ये सोचो कि वो इतने बड़े, उनके बच्चे भी थे, वो इतने बड़े हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने क्या किया था, कृष्ण जी के सामने उन्होंने सरेंडर किया था। क्या किया था? सरेंडर किया था उन्होंने कृष्ण जी के सामने। तो वो कृष्ण जी को पूरा पूरा मानते थे, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी अपने पेरेंट्स के आगे सरेंडर करना चाहिए, कि जो पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं वो इतने बड़े होकर अगर वो कृष्ण जी से गाइडेंस ले सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव इज गाइडेंस। गाइडेंस किसी से भी मिले, गाइडेंस किसी से भी मिले, अगर वो हमें पेरेंट्स से मिल रही है तो हम पेरेंट्स की बात मान सकते हैं ना, यस और नो, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमें गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता है नरेंद्र मोदी का भी एक कैबिनेट होता है और वो भी उनमें से एडवाइस लेते हैं, पता है आपको ये बात? वो सबसे एडवाइस लेते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम ये सोचे कि नहीं जो हमारा मन करे हम तो वो करेंगे, तो इज इट राइट और रॉन्ग? Is it right? It is wrong. Yes, it is wrong. Yes, it is wrong. तो हमें क्या करना है? पेरेंट्स की एडवाइस लेनी है, पेरेंट्स की बात माननी है। यस, क्या करना है? पेरेंट्स की एडवाइस लेनी है, पेरेंट्स की बात माननी है, क्योंकि कृष्ण जी भी अर्जुन को गाइड कर सकते थे जबकि अर्जुन को सब कुछ आता था, ठीक है। वो युद्ध भी लड़ रहा था, लेकिन अब हम सोचें कि यार हम तो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई ना बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कितनी डिफिकल्ट पढ़ाई। तो अर्जुन ने तो नहीं बोला कि कृष्ण जी खुद तो लड़ नहीं रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं लड़ू मैं, है ना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अपने पेरेंट्स की बात माननी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर टुडे, ठीक है। जो जो मैंने आपको आज चीजें सिखाई हैं, ठीक है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बेटर कर सकते हैं अपने इमोशंस को, दैट इज फर्स्ट स्टेप। बट लिमिटेड टाइम में आई कैन ओनली गाइड यू लिमिटेड थिंग्स, ठीक है। सो वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसके बाद वी विल इम्प्रूव मोर, ठीक है। ठीक है, कैसा लगा आप सबको आज का सेशन? अच्छा लगा? जिन जिनको अच्छा लगा वो बोलो ऐसे, जिन जिनको अच्छा लगा, वेरी गुड। और जिनको बहुत अच्छा लगा वो ऐसे करो, जिनको बहुत अच्छा लगा। वाह क्या बात है, खुशी खुशी ऐसे सैड फेस बना के, ऐसे अच्छा ही लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है। ओके वंडरफुल, ठीक है। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन यूट्यूब। आप प्रेरणा दुआ डाल के, यू नो मी नाउ, आपने मेरा फेस देख लिया, यू नो मी, ठीक है। आप मेरे को फाइंड करना, यू कैन स्टे इन टच, यू कैन स्टे कनेक्टेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आई एम विद लाइफ कोच प्रेरणा दुआ, इफ यू पीपल आर, फेसबुक पे प्रेरणा दुआ एंड यूट्यूब पे भी प्रेरणा दुआ, ठीक है। याद रहेगा आप सबको, ठीक है। ओके, सो ओवर टू यू मैम, you can unmute them and they can ask questions. Sure, sure, sure. Thank you so much, Prerna ma'am. All the students, what we can do, you can ask your questions. You can raise your hand and I will unmute you one by one and you can ask the questions. So right now I'm lowering all the hands and those who have the questions can raise their hands and I will take the questions one by one. Okay. So I guess, Ved, you have a question. So I'm giving you. Ma'am, हाँ जी, ma'am, how can I communicate with my feelings? how can you communicate your feelings to your parents? Yes, ma'am. Okay, so first thing is choose the right time. If your parents are already busy in some work, do not interrupt them, ठीक है। ask, tell them that you need to talk to them, ठीक है, for 5 minutes,
और जब वो अपने उनके हाथ में कोई गैजेट ना हो, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज एडिक्टेड टू फोन्स, जब उनके हाथ में कोई गैजेट ना हो, वो एकदम फ्री हो और कुछ काम ना कर रहे हो, या आपने उनके सारे काम फुलफिल कर दिए, उनके साथ 5 मिनट बैठो, एक्सप्रेस इट। आपको जो भी बात करनी है, अपनी फीलिंग्स को बिना गुस्से के अच्छे से एक्सप्रेस करना, ठीक है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. I guess Kritika wants to ask some question. Kritika, you can unmute. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। What about the next session? Ma'am, what about the next session? नेक्स्ट सेशन आई थिंक यू विल गेट द अपडेट, ठीक है? आपको कैंप से न्यू वीडियो अपलोड हो जाएगी, प्रोमो, एंड यू विल गेट टू नो। अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है इस बारे में। कृतिका आपको जल्दी ही बताएंगे बेटा कौन सा नया सेशन है। फोर्टनाइटली यानी हर 15 days, every second and fourth Thursday at 4 p.m. we will come live. We will have these sessions. So you please like, share and subscribe the page. Visit our website. It is on the chat box. The links are on the chat box. आप उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन कौन सा होने वाला है। Okay, ma'am. Thank you. Any other question? किसी और को? Okay, Aman, you want to ask a question? I'm giving you the access. Ma'am, how to connect with parents? Ma'am, connection. हाउ टू कनेक्ट विद पेरेंट्स? Yes, ma'am. ओके, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है? दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक तो मैंने ऑलरेडी वेद को बताया कि यू नो टेक टाइम आउट एंड हैव अ यू नो क्राफ्ट योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स अच्छे से पोर्ट्रे करो। दूसरा क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? इफ यू विल हैव यू नो गुड स्माइलिंग फेस, ठीक है, यू विल जनरेट हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी इमोशंस, ठीक है? तो पेरेंट्स जो है वो भी उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और एक सटल लेवल पे एक कनेक्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप टीचर्स हैं, टीचर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो और आपको किसी से मतलब नहीं है, देन नोबडी वुड लाइक टू टॉक टू यू। बट अगर एक कनेक्ट फॉर्म करना है तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? ये सब कुछ, जैसे आपका पोस्चर जो है, अगर आप लेजी हो तो दैट विल नॉट यील्ड यू एनी बेनिफिट्स, बट अगर आप एक्टिवनेस शो करते हो, ठीक है, आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि एक कनेक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म होगा, ठीक है, विद एनीवन, विद योर सिबलिंग्स। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पैथी। अगर आप उनकी प्रॉब्लम को वो जो कहते, इफ यू विल बी अ गुड लिसनर ना, that is also very important. For example, if you think that mother is upset today, go and ask her. If you think your father is upset today, go and talk to him. उनको लगेगा कि कोई है, मेरा बच्चा मेरे से आके पूछ रहा है अगर मैं आज परेशान हूं तो। Getting my point? Next question. I hope Aman, your query is being answered. Shaurya, you can unmute. Shaurya Pratap Singh. ओके मैम। मैम आपने बोला था कि मैम किसी को मैम पेंटिंग अच्छी लगती है और मैम किसी को ड्राइंग, और मैम मुझे क्राफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, क्वेश्चन कंप्लीट करो। और मैम मैं आपको बटरफ्लाई दिखाता हूँ जो मैम मैंने अपने आप से बनाई थी। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं भी पेंट करती हूँ। ये आपको पसंद है तो इस क्राफ्ट को आपको और ज्यादा एनहांस करना है। वाओ, इसको और सब देख पा रहे हैं? शौर्य सबको दिखा दो। मैम सबको दिखाओ शौर्य अपना क्राफ्ट। ओके मैम। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये आपने खुद बनाया है? यस मैम। गुड, इसको जरूर परस्यू करो, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। द कलर मैंने ये बनाया था, पेपर रोज। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट वर्क शौर्य। आई होप आप
इसको और एनहांस करोगे और अच्छा करो और अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स हमसे शेयर करना. ओके मैम. थैंक यू शौर्य. Continue doing it. थैंक यू मैम. I guess, ma'am, we have covered all the questions. And thank you so much for explaining such important skills to our young champions here. I'm sure they got inspired by this knowledgeable session, and they will definitely bring a positive change in their behavior and attitude by listening to you today, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I'm very happy to be in front of these students and being in a position to help them. Absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you. So before we end this session and move towards the vote of thanks, I have some information for our young champions here. So do like, share, and subscribe our social media channels to get the latest updates and announcements regarding Camp Nesta exam and these amazing workshops that are being organized fortnightly on Thursdays at 4 p.m. So please save the dates. Every second Thursday and fourth Thursday at 4 p.m. Camp is going to bring one amazing and interesting workshop for all of you. To get the participation link, please log into your student panels, and there you can find the participation link. Also, the video and the recording of this session and all the conducted sessions under Camp will be made available to you under your student login. Also, we have enhanced the Camp the Camp student login. Now you can get the journals, the articles published by CSIR, NISPER, and other science communications which are not available to you. Now you can access those articles under your student login. आपको क्या करना है, आप अपने लॉगिन पैनल में जाइए, वहां पर नॉलेज रिसोर्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में. यू क्लिक दैट, आपको पॉडकास्ट और पॉडकास्ट के साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं. वहां से अगर आपको वो आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो आप बुक्स भी बाय कर सकते हैं. तो उस लिंक पे जाके आप CSIR के वेबसाइट से उन जर्नल्स को, उन मैगजीन्स को, लाइक साइंस की दुनिया, विज्ञान प्रगति, ये बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं जिसमें आपको बहुत सारा साइंस के बारे में, इनोवेशंस क्या क्या हो रही हैं इंडिया में, उसके बारे में जानकारी मिलती है. अगर आप वो सब लेना चाहें तो आप वो सब भी वहां से ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. हमने चैट बॉक्स पर एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है. सो प्लीज शेयर योर फीडबैक, इट इज वेरी वैल्यूएबल टू अस. आप लोग अपने फीडबैक जरूर भेजें, हमें जरूर लिखें, and keep participating in our fortnightly workshops. So now I invite Vishakha to deliver the vote of thanks. Yeah. Good evening, everyone. I, Vishakha, coordinator camp on behalf of camp team, is thankful to all the students, parents, and teachers for being a part of this session. I thank Ms. Prerna Dua ma'am for taking out to be a part of this wonderful session. On this note, we will end this session and we will all meet soon. Another exciting session of camp. Till then, take care and be safe. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.